Knowing just Figma or UI design won't get you a high paying UX job. Every big tech company expects you to have one very rare skill, and that is behavioral psychology. We recently hosted our Indore UX and AI meetup where we discussed many psychological hacks. So many designers came and documented their learnings on social media. This video includes one of the many modules we had during the meetup. After this video, you will have a very solid understanding of how UX psychology works and how you can use AI to speed up your design processes and upskill yourself. So without wasting any further time, let's get started. So folks, कैसा था इंदौर meetup? So folks, let's start with module number 1, UX psychology and basic laws. Quick reminder before we go ahead. Folks, अभी तक क्या हो रहा था कि आपकी Figma knowledge and hands-on design systems की knowledge की बहुत ज़्यादा value थी. मतलब अगर आप एक अच्छे executor थे, you would still make a lot of money. In fact, पहले जो coding बहुत अच्छी करते थे, they would also get paid very, very well. Very, very soon, the cost of execution will go down क्योंकि ये सारी चीज़ें automate हो जाएगी. तो अगर किसी को वेबसाइट बनाना आता है, कोडिंग करना आता है या इवन फिग्मा पे कंपोनेंट्स बनाने आते हैं, they are essentially running the wrong race. Because no matter what you do, there will be an AI tool that will eventually automate execution. तो bottom line ये है कि ideation matters the most. If you're a good ideator, then you will always be in a good job. And no matter what tools come and go, the first principles of UX, जो बिल्कुल foundations of UX है, the way humans interact with gadgets and interfaces, that will remain the same. तो आज का मॉडल नंबर 1 पढ़ते हैं, which is on framing. Framing ये बोलता है that we make very different decisions based on how a fact is presented. Of course, definition is very, very complicated. Let's see how this really works. There was a group of people and each was given a bag of meat. And group 1 was told कि ये जो आप मीट खा रहे हो, this is 25% fat. तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक नेगेटिव चीज को हाईलाइट करा, इवन दो दैट नेगेटिव चीज इज वेरी वेरी लो इन क्वांटिटी. ग्रुप नंबर 2 वाज टोल्ड दैट दिस मीट इज 75% लीन. मतलब फैट पे एम्फसाइज ना देके दे सेड दैट दिस इज 75% लीन, व्हिच इज बेसिकली द सेम फैक्ट, बट दिस टाइम इट हैज बीन फ्रेम्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. अब हुआ क्या कि जब दोनों ग्रुप्स ने मीट कंज्यूम करा, दे वर आस्क्ड टू रेट द क्वालिटी ऑफ देयर मीट आफ्टर कंज्यूमिंग. एंड टर्न्स आउट कि जिनको 25% फैट वाला फ्रेमिंग मिला था, यानी जिसको नेगेटिव फ्रेमिंग मिला था, दे रेटेड इट एज 3.7 आउट ऑफ 7. ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों को 75% लीन वाली पॉजिटिव फ्रेमिंग मिली, दे रेटेड द सेम मीट ऑन अ हायर पेडेस्टल. दे रेटेड इट एज 5.3 आउट ऑफ 7, which basically means that different perceptions are made possible by reframing the same evidence. आप एक सेम फैक्ट को एक दूसरे तरीके से सेल कर सकते हो और सामने वाले को लगेगा कि दिस इज बेटर. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू पीपल यूज दिस इन रियल लाइफ? इंस्टेड ऑफ सेइंग 20% ऑफ आवर फ्लाइट्स गेट डिलेड, व्हाट इफ यू से वी आर 5% बेटर देन द इंडस्ट्री? बिकॉज हो सकता है कि ये दोनों सेंटेंसेस सेम फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, बट पहले वाले में आपने बोला कि हमारी सिर्फ 20% फ्लाइट्स डिले होती है, बट आपने डिलेइंग पे ध्यान दिया है कि 20% भी डिले होती है. But when you say that we are 5% better than the industry, even though that number is really, really small, you're still emphasizing the fact that you are better than everybody else in the game. Instead of saying save up to 25% on all purchases, what if you say don't lose your 2% discount? Oh, it should be 25, but yeah, don't lose your 25% discount. Because first case में क्या हो रहा है? You are emphasizing on the fact कि अगर आप खर्चा करोगे तो you save 25%. But on the other hand, you're saying don't lose your 25% discount. अब इंडिया में एक बहुत कॉमन मेंटालिटी है ऑफ लॉस एवर्जन. लॉस एवर्जन ये बोलती है कि अगर आज मैं एक इंस्टाग्राम रील बनाऊं जिसका हुक हो कि ये चीज सीख के आप 10,000 रुपए कमा सकते हो, तो शायद लोग ना देखे. यही अगर मैं हुक बना दूं कि इस गलती से आप हर महीने 10,000 रुपए खो रहे हो, अब सबके सब देखेंगे. लोगों को इस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि 10,000 रुपए कमा कैसे सकते हैं, इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है कि हम 10,000 रुपए खो का रहे हैं. तो एज डिफॉल्ट हम लॉस को एवर्स कर रहे हैं कि लॉस ना हो, प्रॉफिट तो होएगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, बस हमसे कोई कुछ छीन ना ले. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी यूज दिस इन एप्स? तो यहां पे लेफ्ट पे गो पफ करके एक ऐप है जिससे आप ग्रोसरीज मंगा सकते हो. दिस इज अ ऐप बेस्ड आउट ऑफ अब्रॉड.
अब मुझे पता है कि पीछे वाले लोगों के लिए थोड़ा सा पिक्सलेटेड होगा, बट जो बीच में बैठे, कैन यू सी एनी एप्लीकेशन ऑफ दिस, द फ्रेमिंग वाला थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग? स्क्रीन आपके सामने है, आपको कहीं पर भी इस यूआई में ऐसा लग रहा है कि दे हैव यूज्ड पॉजिटिव फ्रेमिंग? तो ऑन द वेरी टॉप उसने लिखा है डिलीवरी, और आई थिंक फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, बट बेसिकली उन्होंने एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाला है डिलीवरी के नीचे जो कह रहा है डिलीवरी इज ऑन फायर, सो डिलीवरी टाइम्स आर रनिंग लॉन्गर देन यूजुअल इन योर एरिया, वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। नाउ माई क्वेश्चन इज, हाउ डू आई नो? व्हाट इफ उनका स्टाफ ही ना हो? And what if they're just saying that the demand is too high? When somebody says the demand is too high, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 10 ऑर्डर आए और सिर्फ 5 ही लोग हैं। अब आपके पास सिर्फ 5 लोग हैं, क्या ये लिमिटेशन नहीं है? टेक्निकली अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो आपके पास 10 लोग होने चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे पास 5 लोग कम है, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास जितने भी लोग हैं दे आर ऑन डिमांड। तो इट इज द सेम फैक्ट बट प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे। जब उबर बोलता है कि कोई कैब नहीं मिल रही, तो वो अब ये नहीं बोलता कि देयर आर नो कैब्स, इट सेज ऑल आवर ड्राइवर्स आर बिजी। सो देन इट फील्स एज इफ यू आर ट्राइंग टू गेट देम एंड दे आर टू गुड फॉर यू बिकॉज दे आर जस्ट बिजी मेकिंग मनी। ऑन द वेरी राइट साइड यू हैव अनदर ऐप जो एक शॉपिंग ऐप है। क्या वहां पे आपको फ्रेमिंग का कोई बेनिफिट दिख रहा है कहीं पर भी? आई नो दैट द फॉन्ट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, बट कैन यू मेक आउट अगर उन्होंने फ्रेमिंग यूज करी हो? यहां पर जो सब हेडिंग है अर्ली ब्लैक फ्राइडे के नीचे, इट सेज हॉलिडे डील्स आर रैंपिंग अप, यू डोंट वांट टू मिस आउट। नाउ द क्वेश्चन इज, जब कोई बोलता है कि वी आर सेलिंग आउट, इज इट रियली अ वेरी गुड थिंग, और इट शोज दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टैकल अ ह्यूज कस्टमर बेस? इट इज द सेम आउटकम कि माल खत्म हो गया है, ठीक है, बट नाउ इट कैन आइदर बी कि माल इतना अच्छा है कि वो सब बिक गया, और आप पे कभी माल था ही नहीं टू cater the entire audience. Before you move ahead, I want to tell you about our latest learning website, howtoprompt.in, where you can get free AI resources, roadmaps, and step-by-step guides that will teach you everything that you need to know about tools like ChatGPT and Midjourney. नाउ अभी जितना भी साइकोलॉजिकल मॉडल है, अगर आपको इसको डेप्थ में समझना है, तो जो करेक्ट तरीका होता है साइकोलॉजी को सीखने का, इट इज नॉट फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो और सम कोर्स, इट इज फ्रॉम रिसर्च पेपर्स। तो एक रिसर्च पेपर ही आपको ठीक से सिखा सकता है कि क्या केस स्टडी थी, इसका क्या आउटकम है। बट बहुत लोग क्या कोशिश करते हैं, कोई वेबसाइट मिल जाए, कोई आर्टिकल मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए, एंड दैट इज अ शॉर्टकट, एंड ट्रस्ट मी दोज विल नॉट टेक यू टू द टॉप 1%। सेकेंड मॉडल पे आते हैं, नॉस्टैल्जिया इफेक्ट। तो हुआ क्या कि दिस लॉ सेज दैट थिंकिंग अबाउट द पास्ट मेक्स अस वांट टू स्पेंड मोर, व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मेक्स अस वांट टू स्पेंड मोर। तो इस बार भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। ग्रुप नंबर 1 वाज टोल्ड कि आप एक ऐसे टाइम के बारे में लिखो दैट मेक्स यू फील वेरी नॉस्टैल्जिक, और ग्रुप 2 को बोला कि आप एक ऐसे इवेंट के बारे में लिखो विच इज प्रीटी न्यूट्रल, अपना डे टू डे के बारे में हमें कुछ बताओ। देन दोनों ग्रुप्स को टेस्ट किया गया ऑन देयर एबिलिटी टू स्पेंड मनी। तो जब उनके पास थोड़ी सी मेमोरीज आई, जब उन्होंने थोड़ा सा लिखा, देन उन्होंने उनको अलग अलग सिचुएशंस में डाला जस्ट टू चेक कि अब इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। ग्रुप 1 जिसने अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में लिखा था, दे वर विलिंग टू स्पेंड मोर and save less. While group 2 जिसने अपनी नॉर्मल दिन भर दिन की मेमोरी लिखी थी, they relatively desired more money. They were still very careful कि 100 रुपए कहाँ पे खर्च हो रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बट बिफोर आई टेल यू कि हो क्या रहा है, do you guys remember these items? Right? Good old days. Now imagine you go to an event and they relaunch it at that event, right? These things were available for the entirety of your childhood, then they went away for a while, and now suddenly if they relaunch them, you know that you would at least wait for 10-15 minutes in the queue to just get them, just to have that refresh कि यार I just want to taste how it was. अब इसका लॉजिक क्या है? As human beings हमारे ना माइंड में एक बायस है कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे, ठीक है। इवन दो अगर आप सारे मेट्रिक्स कंपेयर करोगे
पास्ट वर्सेस आज के इन टर्म्स ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड कंफर्ट एंड योर विजडम, टेक्निकली आज आपका बहुत बेहतर है। बट हमारा मन ये होता है कि यार नहीं, वो दिन बहुत सिंपल थे, पहले चीजें कितनी सिंपल थी, हमारे को कोई स्ट्रेस नहीं था। हो सकता है काफी था, आज आपको याद ही नहीं आ रहा आपको कितना स्ट्रेस होता था। तो ह्यूमंस के ना दो बिगेस्ट कॉन्ड्रम्स है। पहला, दे आर स्टक टू द पास्ट, एंड दूसरा, दे आर एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर। राइट? तो या तो आपको कल की टेंशन हो रही है या इस चीज का बुरा लग रहा है कि मेरा पास्ट चला गया। तो होता क्या है दैट यूएक्स डिजाइनर्स यूज दिस वेरी वेरी जेंटली टू इन्फ्यूज गुड फीलिंग गुड एलिमेंट्स इनटू देयर यूआई। स्नैपचैट के ऊपर जो विंटेज लेंसेज होते हैं और जो विंटेज फिल्टर्स होते हैं, दे आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। इंस्टाग्राम के जितने भी विंटेज फिल्टर्स हैं, दे आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। नाउ हाउ स्टूपिड इज दैट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट? Companies spent millions of dollars to first improve the camera. Then you download an app that degrades the quality just to show off that my new camera takes pictures जो पुराने कैमरा से आती थी. But you're still doing that because you want to feel retro. You want to feel outstanding, that I'm not just one of you, I'm somebody who's like still stuck in the past. Tip number 2, craft memory evoking user journeys. Spotify का आपने टाइम कैप्सूल प्लेलिस्ट के बारे में सुना है, और रिवाइंड और डिस्कवर योर ईयरली प्लेलिस्ट। सो बेसिकली Spotify पे क्या होता है कि जैसे ही पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, Spotify एक आपके बेस्ट टॉप रेटेड टॉप प्लेड सॉन्ग्स का एक प्लेलिस्ट बनाता है। और आजकल और प्लेलिस्ट आ रही है जिनका नाम है 2008 बॉलीवुड, 2006 बॉलीवुड, राइट? एंड दोज आर वेरी पॉपुलर बिकॉज उन गानों को भी सुन के आपको एक ऐसा टाइम याद आता है वेयर यू आर जस्ट लाइक स्ट्रेस फ्री. So you love listening to those songs, not primarily because they are very good, but also because they remind you of a time which you think was better than the present. Let's talk about model number 3, self-expression, which says that we constantly seek out ways to communicate our identity to others. अभी जितने भी मैं आपको definitions दे रहा हूँ, आप notice करो कि definitions के नीचे एक छोटा सा subtext है. This is actually the research paper. And I will be sharing this deck with you. तो आप घर जाके you can actually search for this research paper either on ChatGPT or Google Scholar to read into details. So that is why मैं नीचे उसको mention कर रहा हूँ. अब ये law बोलता है कि you should always allow your users to either show who they are or what they like. Two things if you're building a community app or if you're building a social media app. अब इसका logic क्या है? Before we get into that, have you ever wondered why people love getting tattoos? आप में से या किसी का कोई टैटू है? तो आपने टैटू क्यों बनवाया? ये मत बोलना है लड़की का नाम है, ऐसा कुछ प्यार में बनवा लिया, ये है क्या? आप ऐसे शर्मा रहे हो, किसके लिए बनाया आपने टैटू? Correct. So you like something and you got a tattoo out of it to communicate either who you are or what you like. So that matters a lot. And by the way, getting a tattoo is very painful. काफी दर्द होता है. And a tattoo is a lifetime commitment. Like you can't erase it. So obviously when a person says yes to a tattoo, it's a huge decision. Interesting way ये है देखने का कि when we meet someone, we want to communicate something in the most easiest way possible. Some people use clothes, some people use hairstyles, some people use their phone, shoes, whatever it is. But we want to set an impression as soon as somebody sees us. So coming back, tattoos are a very, very easy way to tell somebody what you like and who you are. And if you look around yourself, you'd realize that there is self-expression in almost everything that you are consuming. This is a MacBook Pro, ठीक है? If you've read Steve Jobs' autobiography by Walter Isaacson, you'd realize that a lot of people had this theory कि जितने भी Apple products हैं, they are an extension of Steve Jobs' personality. Because Steve Jobs by nature was very controlling. उनको पसंद नहीं आता था अगर कोई उनके काम में छेड़खानी करे. That is why he said that nobody should be able to open up the iPhone. Nobody should be able to open the MacBook Pro. आप Acer, HP, Dell किसी के भी लैपटॉप की बैटरी निकाल सकते हो, इजीली खोल सकते हो, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुल जाता है. नोकिया के फोन, सैमसंग के फोन, सबकी बैटरी खुल जाती थी. iPhone said no. You have to use some very specific micro screwdriver to open the battery, and it's going to be super difficult for you to even close it if you interfere.
which means that even though Steve Jobs is a human being with like human beliefs, anything that he created was sort of an extension of his personality. और अभी अगर आप ये होटल देख रहे हो, आप मेरे कपड़े देखो, अपने कपड़े देखो, कारपेट देखो, किसी पर्सन ने तो डिजाइन किया है. अब जो पर्सन सबसे मेन है उसके डिजाइन प्रोसेस में, आई कैन बेट यू दैट फाइनल आउटपुट में उस मेन पर्सन की पर्सनालिटी इन्फ्यूज हुई है. सो देयर इज सेल्फ एक्सप्रेशन एवरीवेयर दैट यू सी. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी यूज दिस इन एप्स. सबसे इजीएस्ट एप्लीकेशन इनेबल थीम्स. व्हाट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ थीम्स? व्हाई डू दे इंट्रोड्यूस कलर स्कीम्स? इंस्टाग्राम में बैकग्राउंड क्यों आया? चैट का बैकग्राउंड भी आ गया, राइट? व्हाट्सएप में यू कैन चेंज द बैकग्राउंड. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दीज थिंग्स? Personalization, because people feel more attached to the app when they feel that they've made some edits to it. Spotify में you can create your own playlist and share it with other people. And at this point they're using AI to add in more songs. तो अगर आपने 10 गानों का प्लेलिस्ट बनाया है, Spotify उन 10 गानों को स्कैन करके खुद ही से 11th और 12th गाना ऐड कर देगा. Now the fun part is that even when you create your playlist, the fact that you can share it is a form of self-expression. Spotify के ओनर्स चाहते तो बंद भी तो कर सकते थे, बोलते नहीं चाहिए शेयर, हटा दो. But sharing का feature is the most pivotal feature in a playlist, because that is how you can share your music and communicate what you like. And imagine if you've made 5-6 playlists on Spotify, if you've been regularly sharing it with your friends, now Spotify becomes more valuable to you. If you're saving Instagram post, Instagram just keeps becoming more valuable and valuable, क्योंकि अगर आप like और comment कर रहे हो, let's say आपके exams आ रहे हो, आपने Instagram delete कर दिया, you will not regret it. Like और comments ही तो है, who cares? But if you've been saving posts and reels for the past 2.5 years, now when you delete Instagram, आप 2 बार ही सोचोगे कि यार मैं तो अपनी virtual library जला रहा हूँ by deleting Instagram. Tip number 2, encourage user-generated content. अगर आप कोई भी ऐप बना रहे हो, अगर आप पे सिर्फ आप पे कंट्रोल है टू क्रिएट कंटेंट, देन यू आर डूम्ड. बट इफ यू अलाउ अदर यूजर्स एंड अदर पीपल ऑफ द एप्लीकेशन टू डू समथिंग ऑन द ऐप, देन यू क्रिएट अ लूप. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल मीमोजीज. This is a proper example of personalization. They could have had normal DPs as well. But if you were to set up a Memoji on the iPhone, you'd realize they have considered every single skin tone, every single hairstyle, every single clothing article that you can possibly imagine. And आपने notice किया होगा, बीच में जब WWDC के ads आते थे, they would show different kinds of Memojis, laughing, smiling. So they are creating a sense of joy. And they are associating that joy and personalization with the iPhone. The link to download this presentation will be in the description, but there's a password for it, and this is the password. Please make sure that you copy this password before you download the presentation. Model number 2, always sell status. और ये इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल है. Basically, we constantly look for ways to improve how others see us. ठीक है? Not even our family members, but mostly strangers. We want to make sure that if a stranger looks at us, we should be better looking, we should be more powerful. So people like to feel good about themselves, and your design can help them with that. Starbucks is the rank 1 example for this. At this point, majority of the people don't even drink Starbucks because they like the taste. It has just become a statement that if you're at the airport, we'll choose a Starbucks because it just makes them feel more superior and feel more cooler than everybody else. And वो कैसे हुआ? Because Starbucks has created that brand identity. They have always associated themselves with something which is very premium. तो जो कस्टमर जिसके लिए प्रीमियम होना एस्पिरेशन है, जो खुद शायद रिच ना हो बट उसका एस्पिरेशन है अमीर बनना, वो एक स्टारबक्स की कॉफी खरीद के एक चीप थ्रिल खरीद रहा है. वो एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं है, वो एक्चुअली में शायद अमीर भी नहीं है, बट जस्ट फॉर दोज 1.5 hours ही इज बाइंग दैट सेंसेशन ऑफ एस्पिरेशन कि आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स. पीपल आफ्टर बाइंग एन आईफोन, मिरर किधर है? And there's a meme that says that 90% of the iPhone selfies are taken in front of the mirror. This is how they show that they have an iPhone. In fact, a lot of people just hide their face. Like it is just to show their outfit and the phone. So what does that tell us? If you can't recognize that person's face, then it is just a statement to say that
I look amazing in this outfit, rank number 1. Point number 2, I have an iPhone with like 3 cameras, 2 cameras, whatever stupid games that they're playing. The question is that you should not be the one who is getting caught up in these hacks. You should be the one who is creating these games. Right? Because now that you understand how this works, you can make something which is replicating how the Apple ecosystem is replicating for its consumers. Right? Where you know that अगर आप कोई ऐसा product बना रहे हो, सामने वाले को मन करना चाहिए कि अगर मैं एक खरीद लूँ, I might just become more superior. I can show off to other people that I was a part of this. So yes, people with iPhones take mirror selfies to just showcase their style and social status. Because it's not just about what you have, it's also about how it makes you feel. And this is something that we'll cover in the second segment as well. कि मुझसे काफी लोग बोलते हैं कि अंश हमने इतनी मेहनत करी, but we're still not getting promoted, we're still not making money, we are very very good at what we do, yet people don't pay us. Issue क्या है that you don't recognize the fact that you're not just paid for the experiences you design, but you also get paid for the experience of working with you. So people want to work with someone that they find more charming and more inspiring. And if you can give them that experience, if you can give them assurance, ki haan, if I have this person on my team, I am relaxed. You need to sell that sensation. That if you join somebody's team, that major stakeholder is relaxed. So let's take Instagram, because Instagram pulled this off really well. The entire concept of followers has changed the world. People have made crores of money just by this one single metric. And people are selling fake followers also. So like the game has gone to the next level. And jab blue tick nahi bikta tha, at that time, if you had a blue tick, like you were like the elitist of the elite, right? Like at one point, this was crazy. But I'm very sure that they will introduce a new version of either the blue tick or something else to sell more status. Like that is the entire game of social media. It is running on people trying to show status. Let's take Airbnb. Airbnb पे क्या होता है कि अगर आप अपना घर लिस्ट करते हो और अगर आपको रेटिंग्स अच्छी मिलती है, देन दे कॉल यू अ सुपर होस्ट. और जो आपका प्रोफाइल होता है, यहाँ पे आपको एक बैज मिलता है एंड ये नाम के नीचे आप देख सकते हो, इट्स सुपर होस्ट. अब ये क्यों करा है एयरबीएनबी ने? बिकॉज एयरबीएनबी जानता है कि अगर मैं किसी को सुपर होस्ट पहले तो बनाऊंगा, दैट पर्सन विल ट्राई हार्ड टू कीप द स्टेटस. बिकॉज अगर कोई सुपर होस्ट नहीं है, देन पर्सन कैन फ्लेक्स कि देखो मैं सुपर होस्ट हूं और आप लोग नहीं हो. And then this person has more incentive to give high quality experiences and better rooms and all of that stuff that eventually helps Airbnb get more customers. अब ये एक साइकिल बन गया. आपने एक सुपर होस्ट बनाया, उस एक सुपर होस्ट ने एक रैंडम ट्रिप में एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दिया. अब ये कस्टमर उस सेम शहर में तो आएगा नहीं क्योंकि इज अ टूरिस्ट. अब वो एक दूसरे शहर जाएगा. ये जो दूसरे शहर का होटल ओनर है, वो इस सुपर होस्ट को देख के जेलस हुआ है, तो वो भी मेहनत करेगा. तो अब क्या हो रहा है, सारे होस्ट एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं और कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है. ये सिर्फ एक यूआई एलिमेंट है. अगर आप ध्यान से देखो, ये कोई बैज या कोई मेडल या हम उनके अगर कुछ भेजते नहीं है. इट इज जस्ट अ बैज दैट इज सेलिंग स्टेटस. तो यू कैन इमेजिन कि एक छोटे से आइकन से, एक छोटे से फिलॉसफी से आप एक ऐप की सक्सेस पे कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हो. बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू नीड टू मेक श्योर कि ये स्टेटस सबके लिए अचीवेबल हो. जैसे आईफोन है, अब चाहे आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, आप चाहे किडनी बेच के ही खरीदो, बट खरीद सब सकते हैं, राइट? आप चाहे घर गिरवी रख के खरीद रहे हो, बट खरीद तो सब सकते हैं. इट इज एसेंशियली अचीवेबल फॉर एवरीवन. सो एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू क्रिएट, दो शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन. ये नहीं कि सिर्फ मेरे कम्युनिटी के लोग या इस स्पेसिफिक स्ट्रैटा के लोग या इतने सिविल स्कोर के कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं. बट लुक एट Instagram. Instagram is accessible to everyone. An app like ET Money or Mint or HDFC just launched a brilliant app called HDFC Sky. तो आप HDFC Sky का डिजाइन देखो, it is impeccable. I think it's going to be the most well-designed finance app. So it is accessible to everyone. Now another way to look at this same mental model is that we strive with and against one another for limited resources and status. मतलब कि अगर एक pool of resources और वो limited pool of resources है, तो we are always ready to fight just to get that limited resource. अब in a race, it is the competition that pushes each runner to run faster and better. क्योंकि imagine करो आप सेम स्टेडियम में हो और अकेले भाग रहे हो, तो आप में तब मोटिवेशन होगी या आपके आसपास और 3-4 लोग भाग रहे हैं तब मोटिवेशन होगी? ऑब्वियसली जब आसपास 2-3 लोग भाग रहे होंगे.
That is why it is always said to do group study. The entire concept of a tuition came in कि आप बाकी लोगों को देख के इंस्पायर हो एंड यू वर्क हार्डर. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एप्स में आप ये कैसे यूज कर सकते हो, बिकॉज इन एप्स हैविंग कॉम्पिटिशन कैन बूस्ट मोटिवेशन टू रिटर्न रेगुलरली टू द ऐप. लेट्स टेक डुओलिंगो. डुओलिंगो इज एन ऐप जिससे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो. अब ये मैथ में भी आ गया है. तो डुओलिंगो में दे हैव अ वेरी क्यूट लीडर बोर्ड, और लीडर बोर्ड इस तरीके से डिजाइंड है कि ऑफ कोर्स आपको स्कोर तो मिलते ही है, बट वो ये भी बोलता है कि टॉप 20 एडवांस टू द नेक्स्ट लीग, ये 3 दिन का है, अगर आप आ जाए तो आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. दे हैव पुट इंसेंटिव फॉर एवरी सिंगल इंटरेक्शन. फॉर एवरी सिंगल डेली इंटरेक्शन यू गेट 10 पॉइंट्स. अगर 30 दिन तक आए तो 30 पॉइंट्स, वॉट एवर इट इज. एंड बिकॉज देयर इज अ लीडर बोर्ड, अगर ये लीडर बोर्ड नहीं होता तो कोई पॉइंट्स को चेज ही नहीं करता. लीडर बोर्ड है तो पॉइंट्स की वैल्यू है, पॉइंट्स की वैल्यू है इसलिए वो वापस ऐप पे आएंगे. नाउ टू मच कॉम्पिटिशन कैन ऑल्सो डिस्करेज यूजर्स. तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन. अब अगर मैं बोलूं ओनली द टॉप 1% कैन विन, दिस इज टू कंपेरेटिव. बट इफ आई से जॉइन द चैलेंज एंड अनलॉक रिवॉर्ड्स, अब आप सबको वेलकम कर रहे हो कि आओ भिड़ो और कुछ जीतो. तो यू आर एसेंशियली इन्वाइटिंग एवरीबडी एल्स टू द गेम. नेक्स्ट मॉडल, एंडाउड प्रोग्रेस इफेक्ट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. It says that we reach our goals faster when we have help getting started. अब मैं बताता हूं इसका एप्लीकेशन क्या है. Rather than कि आप किसी को एक ऐसा चैलेंज दो जिसमें आप उसको ऐसे प्रूव करो कि आपने तो 0 से शुरू करना है, आप एक काम करो, उसको बोलो कि तेरे पहले 2 लेवल्स तो हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 बाकी है. तो दिल्ली में देयर आर अ फ्यू कॉफी शॉप्स एंड आई थिंक इवन डंकिन डोनट्स एंड स्टारबक्स आर डूइंग दिस. आप उनसे कोई चीज खरीदो, वो आपको एक इतना सा कार्ड देंगे, पंच कार्ड, और उसमें ना ऐसे होल्स है काफी सारे, इसी तरीके से ऐसे होल्स है, और वो आपको ऐसे बोलते हैं कि जब आप 7th टाइम आओगे ना सर, तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे. ठीक है. अब इसमें 2 केसेस है. रेस्टोरेंट नंबर 1, उसने आपको वो कार्ड दिया, उसमें 7 सर्कल्स है, और उसने पहला वाला पंच करके आपको दे दिया, बोला कि सर आज आप आ गए हो ना, तो पहला वाला मैंने भर दिया है, आपने सिर्फ 6 बार ही आना है. सेकेंड केस में मैं पहले दिन गया, मैंने खरीदा, अब उसने मुझे एक एम्प्टी कार्ड दे दिया जिसमें 7 के 7 खाली है. जो पहला वाला आदमी है वो ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने आर्टिफिशियल प्रोग्रेस ट्रिगर कर दिया कि आप 7 डेज में से पहला डे तो कर चुके हो, अब आप 6 दिन कर लो. बट दूसरे वाले में इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग अ न्यू बुक. आई विल बी वेरी लेजी. अब लेट्स अज्यूम कि हमने एक बुक रीडिंग करी, और बुक रीडिंग में मैंने चैप्टर 1 आपको पढ़ के सुना दिया. There's a higher chance that आप घर जाके चैप्टर 2 देख लोगे, और अगर मैंने ऊपर से बोल दिया कि दिस इज व्हाट द बुक इज अबाउट, और मैंने आपको एक हार्ड बाउंड बुक दे दी, there's a chance that आप वो बुक पढ़ोगे ही नहीं. तो लेट्स अंडरस्टैंड बाय अनदर रियल लाइफ एग्जांपल. व्हेन यू फील लाइक कुकिंग, अ लॉट ऑफ पीपल गेट लेजी कि यार सब्जी कौन खरीदेगा, सब्जी काटेगा कौन, गैस कौन चढ़ाएगा. That's a huge excuse that people have. But in a lot of cases, if somebody chops the vegetables for you, if somebody prepares the kitchen for you, आपने सिर्फ आना है, वो खाना खजाना की तरह मसाला डालना है, और बस वो थेरेपी वाला पार्ट लेना है, then you'll be up for it. तो या हो क्या रहा है, या ये हो रहा है कि एक तो आपने जो लेस एक्साइटिंग वर्क है वो किसी को आउटसोर्स कर दिया, और यूजुअली जो फर्स्ट 2-3 स्टेप्स होते हैं ना किसी भी काम के, दे आर द लीस्ट एक्साइटिंग, बिकॉज यू गेन मोमेंटम आफ्टर द 3rd और 4th स्टेप. You never gain momentum in the first initial 1 or 2 steps. And this is how you can take things to the next level by giving the user this assumption or this feeling कि हमने पहले 2-3 कदम आपके लिए ले लिए. Now you're super close to completion. So you need to make them feel like they're already winning something. अब इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है LinkedIn. LinkedIn में जब भी आप एक नया प्रोफाइल बनाओगे, वो पहला प्रोग्रेस तो भर ही देता है, और बोलता है 3 तो हो ही गए हैं स्टेप्स इस पूरे प्रोसेस में, अब आपके सिर्फ 4 स्टेप्स बचे हैं. अब हो सकता है सिर्फ 4 ही हो, पहले 3 फैब्रिकेटेड हो, मैंने तो देखा ही नहीं, आपने कभी दिखाया नहीं है 0 से शुरू हो रहा है, आपने डायरेक्टली बोल दिया 3 हो गए. तो दिस इज अ वेरी फन वे, क्योंकि अब मेरा मोटिवेशन ज्यादा हो गया है टू फिनिश इट. Zeigarnik इफेक्ट का भी ये एक सब प्रोडक्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट Zeigarnik इफेक्ट. तो Zeigarnik इफेक्ट हो गया, इसको कुछ लोग गोल ग्रेडियंट इफेक्ट भी बोलते हैं. तो देयर आर मेनी नेम्स दैट दिस गोज बाय. अब Zoom में भी सिमिलरली दे ऑलवेज हैव दिस चेक बॉक्स. अब सबसे पहला चेक बॉक्स है डाउनलोड Zoom टू योर कंप्यूटर. ये तो होगा ही ना, मतलब इसके बिना तो ये कुछ भी नहीं हो सकता.
बट उन्होंने वो भी दिखाया है कि दिस वॉज योर स्टेप नंबर 1. अब आप जीत गए, यहां तक तो आप जीत गए. सेकंड, चेक योर ऑडियो वीडियो, ठीक है, इनवाइट अदर्स टू ज्वाइन. एंड ये भी कितना इंटरेस्टिंग है. तीसरा स्टेप इज टू ट्रिगर नेटवर्क इफेक्ट. इनवाइट अदर्स टू ज्वाइन. आप देख रहे हो, तो उनको ये पता है कि ये तीसरा स्टेप भरने का आपका इंसेंटिव ज्यादा है, एक काम करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं. इसको बोलते थोड़े और यूजर्स लेके आप. इनफैक्ट फोक्स, हम अपनी डेक में भी यही यूज कर रहे हैं. ये जो मैं नीचे बुलेट पॉइंट्स बना रहा हूं, ये इसी का पर्पस है कि आपको दिखता रहेगा कि चलो हम 2 पर आ गए हैं, 3 पे आ गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. तो यस, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू यू बिकम बेटर बाय नोइंग ऑल ऑफ दिस एंड बाय यूजिंग एआई. इज देयर एनी वे कि आप ऐसे मेंटल मॉडल्स को और रेगुलरली पढ़ सकते हो? लाइक व्हाट इज द वे टू इंप्रूव योर डिजाइन थिंकिंग? तो उसको समझाने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज मॉड्यूल नंबर 1. सबसे पहले हमने ये समझा कि यार अगर आप आइडिएशन और थिंकिंग के बारे में सीखते हो, यू विल हैव वे मोर इनसाइट्स because this is the fundamentals of user experience in the first place. Second, we understood that UX psychology is not just about apps. मैंने आपको कितने सारे examples दिखाए जो beyond apps थे, जो real world में थे, right? Physical products में थे. At the very end, perception हो गया या desire हो गया या status हो गया, ये हमारे ऐसे innate features है जो सदियों से हैं. अब जैसे अगर 2 desires है, एक desire है to have a companion और दूसरा desire है to learn about ChatGPT. ठीक है, अब आपने 2 एप्स बनाई. एक ऐप है जो आपको रिलेशनशिप्स के लिए हेल्प कर रही है, विच इज लाइक टिंडर, और दूसरी ऐप है जो आपको चैट जीपीटी सिखाती है. तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐप ज्यादा हिट होगी? 100% द फर्स्ट वन. कोई बोला चैट जीपीटी? देन यू आर टू मॉडर्न फॉर दिस वर्ल्ड. दैट इज व्हाई टिंडर इज सो सक्सेसफुल, बिकॉज इट इज टारगेटिंग अ डिजायर विच हैज बीन इन ह्यूमन बीइंग सिंस एजेस. तो लेट्स हैव कॉल टू एक्शंस. हमारे हर मॉड्यूल के कॉल टू एक्शंस होंगे, जिससे ये सिर्फ थ्योरेटिकल ना रहे. यू विल हैव समथिंग टू डू व्हेन यू गो बैक होम. सबसे पहला इज यू नीड टू टारगेट फॉर लर्निंग 3 मेंटल मॉडल्स पर वीक. इतना आप लोग कर ही सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एआई को यूज करना है टू लर्न दीज मेंटल मॉडल्स. दूसरा, यू नीड टू रीड एटलीस्ट 3 रिसर्च पेपर्स. राइट, तो ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चैट जीपीटी से पढ़ लिया. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डिग डीप एंड रीड द प्रॉपर रिसर्च बिहाइंड इट. And at the very end, figure out कि आप Instagram, YouTube और Facebook तो यूज कर ही रहे हो. If you're learning about 3 mental models every week, can you spot them in these apps? आपने सीखा कि status कोई चीज होती है, तो can you spot that in all of these 3 apps? क्योंकि सिर्फ थ्योरी समझने से कुछ नहीं होगा. You need to see these things happening in real life. You need to recognize these UX laws. You will find all the relevant resources and the link to download the PDF in description. If you're here for the first time, make sure you click on subscribe and hit the bell icon so that you never miss an update. Let me know in the comment section if there's something specific you want me to cover in the next video. We make content on design, AI and technology to help you upskill for free. I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.